सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का कहना है कि वादी में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित कंसल ने कहा कि वादी के 90% इलाकों में दिन की बंदिशें हटाई गई है। उन्होंने कहा कि वादी में 26,000 से ज्यादा लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा स्कूल खुले हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि स्कूलों में तलबा की तादाद कम है, लेकिन उसमें वक्त के साथ सुधार आ रहा है। सरकारी तर्जुमान ने मजीद कहा कि कौमी शाहराह पर मेयों से लदे ट्रक्स की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है। अस्पतालों में भी हस्ब मामूल खिदमात चल रही हैं। Of the valley, free of daytime restrictions of any kind. Jammu and Ladakh already continue to be free from all such restrictions, and in totality we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders today. On the communications front, we have been briefing you from time to time. In our latest decision, we decided to open 29 more exchanges, making the number of functional exchanges to 76 out of a total of 95. Over 26,000 landlines are functional in the valley. This is evident from the fact that the Deputy Commissioner's office in Srinagar, which used to see 2,500 calls being made from its facility, has seen the number of calls being made from its facility fall by over 85%. In Jammu and Ladakh, landlines as well as mobile phones are fully functional. Government offices have attained full functionality. Staff attendance is very good. We decided to open primary schools, middle schools and high schools, and over 4,000 schools are now functional with good staff attendance. Attendance of children continues to improve, although it still continues to be low in some places. Private transport is plying unhindered. Public transport is returning to the road. Inter-district public transport in the valley, particularly for north, south, as well as for Jammu and Kargil, particularly through LMVs, is now available. The national highway continues to be normal. The movement of fruit trucks on the highway is steadily increasing. On the incoming side, all essential supplies continue to be supplied to the valley. All medical facilities and hospitals are functioning normally. Threats by anti-national elements have been keeping many markets from opening. Incidents at Parimpura and stone pelting on a local driver are unfortunate and have been taken due cognizance of by the security agencies. I have emphasized in many of my briefings in the past that the endeavor of the government has been to relax and facilitate as much and as quickly as possible medical aid, assistance for air ambulance, assistance to hospitals, assistance to students wanting to appear in examinations has been provided, and facilitation shall continue to be provided.
जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 29वें रोज वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सिवाय चंद लैंडलाइंस को छोड़कर मौसलाती निजाम अभी भी ठप है, जिससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी की अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन समेत दीगर कई लीडर्स अभी भी हिरासत में या नजरबंद हैं। गांदरबल में भी बदस्तूर मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हैं। दुकानें और तालीमी इदारे बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। ताहम पैदल राहरव और निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। अमन जब्त की बरकरारी के लिए अहम रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। मिनी सेक्रेटरीट पर सरकारी दफ्तर में कामकाज ठीक से चल रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अस्पतालों और तिबी मराकज पर तमाम सहूलियात दस्तयाब है। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ अच्छे मिकदार में हैं और मेडिकल सप्लाईज हमारे बिल्कुल ठीक है। हमारे सारे हॉस्पिटल्स फंक्शनल हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्बे पुलवामा समेत पूरे जिले में कारोबारी मराकज और दुकानें बंद रहीं। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। इंतजामिया की जानिब से जिले में स्कूल तो खुले थे, लेकिन तलबा की हाजिरी न होने से स्कूल आज भी सुनसान ही थे। जिला पुलवामा में भी मौसलाती निजाम बंद होने से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कस्बे शोपिया समेत जिले के बेशतर इलाकों में आज 29वें रोज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। दफा 370 की मनसूखे के बाद जिला शोपिया में भी आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। कस्बे शोपिया में अगरचे निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई, ताहम कस्बे समेत तमाम जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल रही। तारीखी मुगल रोड पर भी ट्रैफिक की नक्लो हमल मुअत्तल रही। मौसलाती निजाम ठप होने से आम लोगों के अलावा तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। कुपवाड़ा जिले में आज 29वें रोज करना से लेकर कुपवाड़ा हंदवारा लंगेट तक बंदिशें हटा ली गई, जिसके बायस लोगों के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। निजी गाड़ियों की आवाजाही के बायस अस्पतालों के गिर्द नवा मरीजों का रश भी बढ़ गया। साथ ही साथ अद्वियात की दुकानें भी खुली रही, जबकि लोगों की नक्लो हरकत में भी इजाफा देखने को मिला। इस दौरान पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रखा गया था ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटा जा सके। वादी में हालिया दिनों पत्थरबाजी के अलहदा वाकयात पेश आए हैं। बिजबिहाड़ा में पथराव में ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद की हलाकत हुई है। कुपवाड़ा में भी एक शहरी जख्मी हुआ है, जबकि डाउनटाउन श्रीनगर में एक लड़की की आंख पर चोट लगी है। इन शरपसंद अनासर से पुलिस सख्ती से निमट रही है। पेश है ये रिपोर्ट। पत्थरबाजी के वाक़े में इस खातून ने अपने शौहर नूर मोहम्मद डार को खो दिया। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में 25 अगस्त को 42 साला नूर मोहम्मद ट्रक चला रहे थे। इसी दौरान बाज शरपसंद अनासिर ने उनकी ट्रक पर पथराव किया। इस वाक़े में नूर मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम बाद में उन्हें स्किम्स सौरा रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान नूर मोहम्मद की मौत हो गई। नूर मोहम्मद अपने खानदान के वाहिद कमाने वाले थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 बच्चे हैं। नूर मोहम्मद क्या बात होता है खानदान तुम्हारे वाले खुश होते भी को होएगा बाइचलो छु रे बेशक ज़ेना नो ना को होएगा बेशक की सहारा वाला तिमिस वाला स्किल सो ड्राइवर दिए हां ड्राइवर बेशक तिमिस वाला का ज़ेना नो ना को होएगा तिमिस वाला छु तो छु बाइचते तो बेशक पांती है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। On 25th of August, at around 8:30 p.m. in the evening, some miscreants pelted stones upon a truck bearing registration number JK03F2540 near Idga Crossing, Bijbihara. This truck was in fact
on way to Srinagar, and one of the stones hit straightway head of the driver of that truck, Noor Muhammad Dar, son of Muhammad Khalil Dar, Aro Kuranhal, Bijbehara, and he got badly injured. Within no time, police party reached on spot and they found that the driver was profusely bleeding, and they took him to the hospital where doctors gave him first aid, and afterwards he was referred to Sikkim Sora for specialized treatment. But unfortunately, he lost his battle and succumbed to his injuries in Sikkim Sora. Police registered a case into the matter and acted very swiftly, and all the miscreants who are responsible for this inhuman act have been arrested. कुपवाड़ा में हाल ही में हुए पथराव के एक दूसरे वाक़ये में एक शहरी जख्मी हुआ है। मेवा बाग में छुपे अफराद ने पथराव किया था। शदीद जख्मी शहरी को सीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले डाउनटाउन श्रीनगर में भी पथराव का वाकया पेश आया था। श्रीनगर वाक़े में एक लड़की की आंख पर चोट लगी थी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पत्थरबाजी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वादी के मौजूदा हालात और दुश्वारियों के बीच हायर सेकेंडरी क्लासेस के तलबा ने अपने मुतल्लिका स्कूलों में इम्तिहान फॉर्म पूर्ण किया। निसाब नामुकम्मल रहने और इंटरनेट सहूलियात न होने से तलबा फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के 29वें रोज भी लोगों को दुश्वारियों का सामना रहा। दफा 370 के बाद पैदाशुदा हालात ने जिंदगी के सभी शोबों को मुतासिर किया है। ताहम शोबा तालीम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 29 रोज से तमाम स्कूलों में क्लास वर्क नहीं हुआ है, लेकिन आज तलबा किसी तरह स्कूल पहुंचे। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात इम्तिहान फॉर्म दाखिल करने के लिए स्कूल पहुंचे। बहुत से तलबा तो कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद बमुश्किल तमाम अपने स्कूल पहुंचे ताकि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक इम्तिहान फॉर्म भर सकें। कुछ स्कूलों में फॉर्म मौजूद नहीं थे, ताहम कुछ देर में स्कूलों में फॉर्म दस्तयाब कराए गए। इस मौके पर तालिबात ने कहा कि उनका निसाब मुकम्मल नहीं है, इसलिए हुकूमत से उनकी गुजारिश है कि निसाब में कमी का ऐलान किया जाए। अभी T2 का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन अगर 100% सिलेबस आएगा तो मुझे लगता है कई बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमारा अभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमारा 50% सिलेबस रखेंगे तो सारे बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, और स्कूल्स भी अगर जल्दी से खुलाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। आधों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो वगैरह ट्यूशन नहीं जाते थे। अगर स्कूल ही आते तो सिलेबस कंप्लीट हुआ। जब से हालात ख़राब हुए तब से स्कूल ही बंद है। इंटरनेट होता तो हम ऑनलाइन भी फॉर्म्स फिल कर सकते थे, इंटरनेट होता तो, लेकिन कुछ भी नहीं है, ना कोई और कम्युनिकेशन सर्विसेज। हम कॉल भी कर सकते थे कि कब फॉर्म पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं है। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। दूर दूर में बच्चे हैं, वो स्कूल आ नहीं रहे थे, तो प्रॉब्लम तो हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि सिलेबस में थोड़ी सी लीनियंसी तो होनी चाहिए। न सिर्फ तलबा बल्कि उनके वालिदैन भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से परेशान हैं। फॉर्म भरने थे तो ये मतलब हमारे जो इंटरनेट से बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चे भी परेशान हैं, बाप माँ सब परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशानी। एक तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो पैदल आते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और जब कुछ न मिले ट्रांसपोर्ट तो और भी दिक्कत होती है, और आके स्कूल में परेशान हो जाएं। वाज़ेह रहे कि इम्तिहान फॉर्म भरने के लिए इंतजामिया की जानिब से 10 सितंबर आखिरी तारीख है, जबकि इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन फॉर्म भरने की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। तलबा से स्कूल आकर फॉर्म भरने को कहा गया है। श्रीनगर शहर के बेशतर स्कूलों में आज 10th और 12th के स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे सरकारी अहकामात के मुताबिक। ताहम इन बच्चों का कहना था कि जो सिलेबस इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और जो लगातार जो क्लास वर्क सस्पेंडेड है यहाँ पे पिछले तकरीबन 1 महीने से, इसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन बच्चों का मुतालबा है कि सिलेबस में कटौती की जाए ताकि ये एग्ज़ाम्स अटेंड कर पाएँ। हालांकि हुकाम ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि कोई मास प्रमोशन नहीं होगी
اور جو ایگزام ہے جو وہ مقررہ وقت پہ ہوں گے. فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ, نیوز 18 اور دوسرے نگر. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ریاست جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد لگاتار انٹرنیٹ خدمات معطل رہنے کی وجہ سے جموں کے کاروباری طبقے کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیٹ خدمات نہ ہونے کی وجہ سے ان کاروباریوں اور کارخانہ داروں کی تجارت میں کافی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. پیش جموں سے سمیر بٹ کی رپورٹ. جموں کے ویئر ہاؤس علاقے میں اتل کھنہ نامی یہ تھوک ویاپاری اس انتظار میں ہے کہ کب شہر میں انٹرنیٹ خدمات بحال ہوں تاکہ وہ ایک بار پھر اپنے کاروبار کو بہتر ڈھنگ سے بحال کر سکیں. انٹرنیٹ خدمات کی معطلی کی وجہ سے اتل کھنہ اور دیگر ایسے ہزاروں کاروباریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ نہ تو اپنے ڈیلروں سے لین دین کر پاتے ہیں اور نہ ہی نیا مال منگوانے کے لیے ملک کے دیگر حصوں کے کاروباریوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اتل کھنہ کا کہنا ہے کہ جب سے ریاست میں انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی ہے تب سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. کمیونیکیشن بالکل ٹھپ ہے اور جموں میں بھی نیٹ تو بند ہی ہے, تو کافی پرابلم آ رہی ہے. جیسے ہم اپنے ویپاریوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے پیمنٹس کے لیے اور نئے فریش آرڈرز کے لیے. اب وہ پرانا زمانہ ہے, اب وہ وہاں سے لیٹرز لکھ کے بھیج رہے ہیں, ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں, جو کہ میں نہیں سمجھتا آج کے دور میں کوئی وہ افیکٹو ہے. ہماری جو ٹرانسپورٹ سری نگر کے لیے جاتی تھی, جو گاڑی ہماری 2 دن کے لیے جاتی تھی, وہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا اور کہاں پہ گاڑی پہنچی ہے کہاں پہ نہیں. کمیونیکیشن نہیں ہونے کے کارن ہماری جو سپلائی لائن ہے وہ کافی ٹھپ ہو گئی ہے. انٹرنیٹ خدمات معطل رہنے کی وجہ سے کاروبار پر بھی کافی برا اثر پڑ رہا ہے اور کاروباری اس صورتحال سے کافی پریشان ہے. کاروباری افراد کا ماننا ہے کہ اس خدمت کی معطلی سے روزانہ کروڑوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. جموں کے ان کاروباریوں کا سرکار سے مطالبہ ہے کہ انٹرنیٹ خدمات کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے قدم اٹھائے جائے. گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی اس پوزیشن کو تھوڑا سا ٹھیک کریے, کیونکہ انٹرنیٹ کو بھی تھوڑا سا دھیرے دھیرے چھوڑیے تاکہ ویپاری ورگ کو راحت ملے اور کشمیر کا جو بھی ویپار ہے وہ سموتھ سے چلے اور اس سے جموں کشمیر کے یا جموں کے ویپاریوں کو بھی کوئی دقت نہ آئے, کیونکہ جموں کا بہت سارا ویپار جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں انٹرنیٹ خدمات کی معطلی سے ہر سیکٹر کو نقصان ہو رہا ہے. ریاست میں انٹرنیٹ کی بحالی جہاں جموں کے کاروباریوں کے لیے ضروری ہے, وہیں اس خدمت کی وادی میں بحالی کاروباری طبقے کے لیے سود مند ثابت ہوگی. جموں سے نیوز 18 اردو کے لیے سمیر بٹ کی رپورٹ. ضلع رامبن میں گورنر کے مشیر کے سکندن اور کے شرما نے ضلع کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی میٹنگ لی. ضلع ترقیاتی کمشنر اور ایس ایس پی رامبن سمیت ضلع کے تمام افسران مشیروں کو ضلع کی مجموعی صورتحال اور ضلع میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی طور سے آگاہ کیا, جس کے بعد ضلع کے سرپنچوں اور سول سوسائٹی کے ممبران نے بھی اپنے مسائل کو لے کر دونوں مشیروں سے تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر کے مشیر کے سکندن نے میٹنگ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ضلع رامبن میں مجموعی طور سے حالات پرامن ہیں. انہوں نے موبائل خدمات کی بحالی کی یقین دہانی کرائی. وہیں گورنر کے مشیر کے شرما نے ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی بات کرتے ہوئے رامبن ضلع کے اندر دریائے چناب پر پل کی تعمیر اور سڑک رابطے کی مرمت کو ترجیحاتی بنیادوں پر شروع کرنے کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ضلع میں محکمہ پی ایچ ای کے تحت ہر گھر تک پانی پہنچانے کی اسکیم کو بھی وسعت دی جائے گی. There is only one small issue of opening up of telephones because the BSNL lines are not working here. We will take this up. رامبن ڈسٹرکٹ ریلیٹڈلی نیا ڈسٹرکٹ ہے. یہاں پر 2-4 امپورٹنٹ اسکیمیں چل رہی ہیں. کچھ اسکیمیں یہاں پر نہیں آنے کی ضرورت ہے. جیسے کچھ ایک پرانا برج یہاں پر سینکشن ہوا ہے جو رامبن کے دونوں پارٹ جو ہیں چناب کے آگے پیچھے, اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے. اس کے ٹینڈر بھی ہوئے ہیں لیکن اسکیم وہ رکی ہوئی ہے. تو یہ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہماری ٹینشن میں لایا ہے, اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کروائیں گے. اس کے اترکت کچھ روڈ بھی جو رامبن کی ایک مین روڈ ہے اس کو گرفٹ مینٹین کرتی ہے,
और उसको ठीक होना भी रामबन का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है. That also we'll see either through the GRIF and in what manner that work can be taken up. We have appreciated that this needs to be taken up. कश्मीर में मेवा काश्तकारों की सहूलतों की फराहमी के ताल्लुक से काफी शिकायतें हैं, ताहम हुकूमत का कहना है कि सेब और दीगर फलों से मुतल्लिक काश्तकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं ताकि काश्तकार खुसूसी तौर पर सेब को मंडी तक पहुंचाए. NAFED की टीम भी काश्तकारों से सेब की खरीदारी को हतमी शक्ल देने के लिए कल कश्मीर का दौरा कर रही है. इसी सिलसिले में हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट से तफसीली बातचीत की. मईशत का एक अहम हिस्सा है और आजकल जो सेब हैं उनको उतारने का वक्त है और उनकी ख़रीदारी और उनको मंडियों तक पहुंचाने के लिए, उनके ख़रीदारों तक पहुंचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट साहब. एजाज साहब, आपका खैर मकदम. गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किए हैं कि जो ये काश्तकार हैं उनके जो फल हैं वो मंडियों तक पहुँचे, उनके ख़रीदारों तक आसान तरीके से पहुँचे? इसमें हर एक ज़िले में तकरीबन मंडी हर एक ज़िले में एस्टेब्लिश्ड है और ये मंडी से आलमोस्ट चला जाता है, एक्सपोर्ट होता है और आर्चार्डिस्ट अपना चाहें अपने लेवल पर भी वो ट्रक अरेंज करा के भेजते हैं. इस साल ये नामासायद हालात की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इसमें सरकार को भी फिर इंटरवीन करना पड़ा कि इनको बर वक्त टाइम पर गाड़ी मिले या दूसरी सहूलियत जो भी है कोई वो मिले. तो इस सिलसिले में ड्यूकाम साहब में 2-4 मीटिंग्स का सिलसिला चला. इसमें भी सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग्स लिए और इसमें ये तय पाया गया कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को ट्रक की ज़रूरत है, किसी मंडी को ट्रक की ज़रूरत है, तो इसमें जो SSP ट्रैफिक रूलर हैं वो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेंगे. जो बाहर से यहाँ ट्रक्स आते हैं माल लेके वो डाइवर्ट हो जाएंगी एज आफ्टर गेटिंग रिक्वेशन फ्रॉम कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स. तो लोगों को भी चाहे कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच करें अगर उनको ट्रक की ज़रूरत है, किसी मंडी में ट्रक की ज़रूरत है, अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच करेंगे तो वो रिक्वेशन दे के वो ट्रक अरेंज कर सकते हैं और उसमें बैलेंस रहेगा, उसमें ये चेक भी रहेगा. अगर फेयर कहीं बढ़ता है ट्रक कम होने की वजह से वो भी चेक रहेगा. इसमें RTO को भी रोपिन किया गया है, वो भी SRTC या लोकल जो भी ट्रक्स हैं उनका हिसाब रखेगा और गवर्नमेंट के साथ वो प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन और डिप्टी कमिश्नर के साथ भी इन टच रहेगा. आपका कहना यह है कि सरकार ने ट्रकों का इंतजाम किया, आप यही कहना चाहते हैं? जी, ट्रकों का अरेंजमेंट है बिल्कुल. अपने हर एक ग्रोवर को अपने डिप्टी कमिश्नर से रखना चाहिए रायबता और वहाँ से अगर कोई भी और भी कोई दिक्कत उसको आती है कहीं लेने में उठाने में तो वो अपने डिप्टी कमिश्नर से मदद ले सकता है. कई लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जाहिर सी बात है कई जगहों पे दूर है, तो उस सिलसिले में एक ग्रोवर जो किसी दूर गांव में रहता है वो किससे राब्ता करे? वो भी राब्ता कायम कर सकता है. ये जो हार्टिकल्चर के AGMs हैं या चीफ हार्टिकल्चर अफसर हैं उनसे भी राब्ता कर सकता है, उनको भी अपनी बात बता सकता है और वो भी फिर आगे जाके वो उसमें हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. मंडियों की आपने बात की, मंडियाँ ऑपरेशनल नहीं है? नहीं, मंडियाँ ऑपरेशनल हैं. आज की डेट में सोपोर की मंडी ऑपरेशनल है, आज की डेट में गांदरबल और चाडोरा ये चार शरीफ की मंडी ऑपरेशनल हैं. वो भी अभी हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब पूरा हार्वेस्ट स्टार्ट वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी. उसमें इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर भी देखेंगे और इसमें अगर कहेंगे एक्सपोर्ट की अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम लास्ट ईयर के साथ, इस आज की डेट में इस महीने अगस्त के महीने में तकरीबन 1,50,000 मीट्रिक टन जो फ्रूट है वो एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इसका नस्बी हुआ था. एक्सपोर्ट मतलब स्टेट से बाहर, जबकि पिछले साल इससे कम ही हुआ था. इस साल इस महीने 14,000 ट्रक लोड गए हैं, पिछले साल 9,000 ही ट्रक लोड गए थे. अगर वो कंपैरिजन करेंगे तो उस हिसाब से सूरत हाल ठीक है. फिर क्या वजह है कि लोग शिकायतें कर रहे हैं कि उनके नाशपाती जो है वो दरख्तों पे ही रहे या नुकसान हुआ, ये क्यों कह रहे हैं लोग? जो नाशपाती बेसिकली डेलिकेट है, वो शेल्फ लाइफ उसकी कम होती है, तो वो इमीडिएटली लेना पड़ता है, वो इमीडिएटली देना पड़ता है. तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि लोगों को अगर ट्रक की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली अपने डिप्टी कमिश्नर से राब्ता कायम कर सकते. आज के हालात में वो वहाँ से मदद ले सकते हैं. वही शायद लगता होगा कि कहीं
टाइम पर नहीं मिली तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो किराए में इजाफे की वजह से उसको थोड़ा नफ़ा कम आ गया, वो हो सकता है। अदरवाइज आज की डेट में श्रीनगर में भी 40 रुपीज़ पर kg ये जाता है हमारा नाशपाती बगु गोशा। लोकली इस बार कंजप्शन हुई, लोकली कंजप्शन अच्छी है। हाई डेंसिटी का भी 80 से 100 रुपये पर kg जाता है, ठीक रेट है यहाँ, लोकल मंडी भी अच्छा रेट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब हमने बात की जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसा भी हुआ कि हम कम्युनिकेशन चूँकि है नहीं, पहले ये होता था कि जो व्यापारी है उससे बात होती थी, हम 2 ट्रक भेज रहे हैं यहाँ से, इसका रेट ये रहेगा। अब की बार ये है कि ट्रक वाले पे ही मुनहसर है कि वो उस फल का करेगा क्या बाहर, क्योंकि यहाँ से गया माल फिर कोई पता नहीं उसने कहाँ क्या किया। क्या हुकूमत किसी तरह का मवासलाती निज़ाम बहाल करने पे सोच रही है? इसमें मैंने अर्ज़ किया कि ड्यूकॉम साहब ने इसमें 2-4 मीटिंग्स ली हैं, उसमें डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग भी था, तो उसको डायरेक्शन दी गई कि जिस मंडी में आपको लैंड लाइन फंक्शनल करवाना चाहते हैं उनका नाम, उनका लिस्ट दिया जाए तो वो हो जाएगा। वो डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग ने भेज दिया है, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हो जाएंगे रेस्टोर। मतलब एक कि मंडियाँ ऑपरेशनल सभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। खासकर जो मैंने नेफेड की बात की, तो नेफेड भी उन्होंने भी वो सिलसिला किया यहाँ जो शुरू, कल से उनका टीम आ रहा है और वो यहाँ जो भी मॉडर्स अपेरेंडी है, जो भी यहाँ काम करना है परचेज़ के लिए, उस पर वो काम करेंगे। तो उसमें यहाँ उनका ऑफिस भी चलेगा और जो भी फर्दर स्टेप्स लेने हैं तो वो इंशाल्लाह कल से हो जाएंगे। ग्रोवर है वो चाहता हो कि नेफेड को अपना माल दे, उसका कोई तरीका अभी निकाला गया है? अभी उसमें एक कमेटी बनेगी, एक हाई लेवल कमेटी बनेगी स्टेट की तरफ से, जो रेट फिक्स करेगी, और नेफेड की भी एक सर्वे कमेटी रहेगी। वो अभी तय होना बाकी है, वो अगले 1 हफ्ते में वो चीज़ें तय हो जाएंगी और ग्रोवर्स को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हाई डेंसिटी का बहुत एक प्रोग्राम चला है, हम जानना चाहेंगे, हमारे जो लोग हैं, जो नाजरीन है, वो जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह है। अगर कोई चाहेगा कि मुझे हाई डेंसिटी का बाग लगाना है, उसको क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये पिछले 3-4 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि दिन ब दिन हमारी ज़मीन सुकड़ती जा रही है और हम चाहते हैं कि हमारी कम ज़मीन में अच्छी पैदावारी सलाहियत हो। हमारे जो ट्रेडिशनल बागात थे उसमें प्रोडक्शन अगर 1 हेक्टेयर का हम 10 मीट्रिक टन निकलता था कि, तो देखा गया है जो हाइडेंस से इसमें 70 से 80 मीट्रिक टन उसी 1 हेक्टेयर का निकलता है। इस वजह से ये हमारी इकानमी को काफ़ी बूस्ट करेगा। और इस सिलसिले में हमने आज तक 100-150 हेक्टेयर किया है प्लांटेशन, और इस साल भी 100-150 हेक्टेयर करने का है। और आने वाले टाइम में अगर हमारे पास 1.64 लाख हेक्टेयर्स का है, तो शायद हम मैक्सिमम पोर्शन को हाई डेंसिटी करना चाहते हैं। उसमें सरकार की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स का कोई गलत नहीं है, वहाँ से हदायत है कि मैक्सिमम किया जाए। और हम उसमें 2 चीज़ें देखनी है, एक तो प्लांट मटेरियल देखना है, दूसरा हमारा ये जो रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक हमारे पास अभी 2-2.5 लाख का आ गया है और 2-2.5 लाख मार्च तक आने वाला है, तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो हम चाहेंगे रूट स्टॉक भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाए, साथ साथ हम ये प्लांट मटेरियल भी बनाएंगे, यहाँ अपना भी बनाएंगे। और 2-3 साल में हमारा अपना भी काफ़ी सारा ये प्लांट मटेरियल यहाँ अपनी, क्योंकि 400 हेक्टेयर का हमारा अपना यहाँ नर्सरीज़ हैं जो हमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में हैं, उस पर भी काम करेंगे। और अगर हमें बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा वो भी करेंगे। और कोशिश रहेगी, मेरी भी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह सरकार की भी ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारा ये हाइडेंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ। हमारा आज की डेट में जो इस वक्त 8 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इससे डायरेक्टली, और इसमें लगभग 7 लाख फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, जिनमें लगभग 35 लाख सोल्स आते हैं बागवानी में। एक बड़ा एक तबका 1/3 तबका हमारा आबादी का इससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कोई हद है? एक शख्स के पास, एक ग्रोवर ऐसा है जिसके पास सिर्फ 5 कनाल ज़मीन है, क्या वो उसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मौका मिलेगा और कैसे? अभी तक जो रूल में बना है वो मिनिमम 3 कनाल और ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन को, एक फैमिली में 20 कनाल। तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, खुद हम कानून बनाते हैं। अगर 2 कनाल से कम, 3 कनाल से कम भी होंगे, उस पर भी फोकस किया जाएगा। क्योंकि एडवाइज़र साहब ने जो मीटिंग ली, तो एडवाइज़र साहब ने ये फरमाया था कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको प्रेफर किया जाए। उसमें भी हम वो एक सर्वे कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो शायद हमारी प्रेफरेंस छोटे बाग ये जो ग्रोवर हैं उन पर ही रहेगी। शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर बागवानी जो हमें बता रहे थे कि हुकूमत अपनी तरफ से और महकमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि किसानों को किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी में मौसलाती निजाम मुतासर होने से जहां आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है, वहीं जिला शोपियां में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के कंट्रोल रूम पर भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। वादी कश्मीर के नामसाइद हालात से जंगल स्मगलरी में भी काफी इजाफा होता है, लेकिन इस बार मौसलाती निजाम न होने से जंगलात की हिफाजत कर रहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस के कंट्रोल रूम भी मुतासर हुए हैं। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने धोबीवन कुंजुर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में महकमे पुलिस के 3 रोजा बेसिक लाइफ स्पोर्ट ट्रेनर्स प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। विजय कुमार ने कश्मीरी रिवायत की तर्ज पर इफ्तिताह किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और आर्म्ड पुलिस के अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार के हमरा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डोलू, आर्म्ड पुलिस के आईजीपी विजय कुमार, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर कंजस डोलमा, एसएसपी बारामुल्ला अब्दुल कयूम, एसडीएम गुलमर्ग शब्बीरुल हसन, उनके अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी थे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसमें हमारे ये एसडीआरएफ के ये हैं और ट्रैफिक पुलिस और एसडीआरएफ के पर्सनल्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग करेंगे। ये कोई 43 के करीब पर्सनल्स हैं। ये यहाँ पे हमने एकोमोडेशन किए हैं। 3 डेज का बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो ये जाके डिस्ट्रिक्ट्स में फिर ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ताकि वहाँ पे फिर फर्दर ये लोग पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग करवा सके वहाँ पे। फौज ने आज शहीद ग्रेनेडियर हेमराज जाट को खराज अकीदत पेश किया, जो पुंछ सेक्टर में मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलोन चिनार कोर के कमांडर और फौज के तमाम रैंक से वाबस्ता ओहदेदारों ने शहीद हेमराज को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी शहीद ग्रेनेडियर हेमराज जाट को खराज अकीदत पेश किया है। कल पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसमें हेमराज जाट जख्मी हो गए थे। बादामी बाग श्रीनगर में फर्स्ट एड दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। शहीद हेमराज का ताल्लुक राजस्थान के जिला अजमेर के गांव बधून से है। शहीद हेमराज के जस्ते खाकी को उनके आबाई गांव ले जाया गया है, जहां फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के खाड़ी करमाड़ा सेक्टर में खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी आर्मी ने आज सुबह बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से LOC के पास के इलाकों के लोगों में खौफ और हिरास का माहौल है। पाकिस्तान की इस हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दफा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। ताहम पुंछ रावलाकोट बस सर्विस आज भी जारी रही। पुंछ रावलाकोट बस में सवार होकर चाकंदाबाग के रास्ते 2 खवातीन पाक मकबूजा कश्मीर रवाना हुई। इस दौरान किसी नए मुसाफिर की LOC के पार आमदोरफ्त नहीं हुई, इसलिए समझा जाता है कि अगले हफ्ते इस बस सर्विस के जारी रहने का इम्कान बहुत कम है। जो फायरिंग हो रही है ये बंद होनी चाहिए। दोनों कंट्री बैठ के बात करें, उनके भी लीडरान आए, हमारे लीडरान भी बैठें, तो इसका कोई एमिकेबली हल निकालें। लद्दाख खित्ते के 207 नौजवान लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट में शामिल हुए। फौज का हिस्सा बने इन नौजवानों पर मुल्क को फख्र है। पेश लह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख खित्ते में लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट का अहम किरदार रहा है। 1971 की जंग हो या 1999 का ऑपरेशन विजय या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा मैदानी जंग सियाचिन, जहां पर तैनात जवानों ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करके हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और चीन की सरहद पर हमेशा फौलाद की दीवार की तरह खड़े होकर मुल्क की हिफाजत की है। इन बहादुर जवानों पर पूरे मुल्क को फख्र है। लद्दाख खित्ते के मजीद 207 नौजवान लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट में शामिल हुए। लेह में वाक़ई लद्दाख स्कॉट रेजिमेंटल सेंटर में रंगारंग पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई।
कोर कमांडर वाई के जोशी ने अपने खिताब में रेजिमेंट की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और इन नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस रेजिमेंट में 70 साल से 21 साल तक के मकामी नौजवानों की ही भर्ती की जाती है, जो लद्दाख की आबो हवा, पहाड़ी रास्तों और ज्योग्राफिया से पूरी तरह बाखबर रहते हैं। 200 नौजवान पर मुश्तमिल एक पासिंग आउट परेड से लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट को एक फख्र का मुकाम हासिल हुआ है, क्योंकि लद्दाख स्क्वाड वही रेजिमेंट है जो चीन और भारत के ऊंची सरहदों से लेकर मैदानी सरहदों पर फौलादी दीवार की तरह खड़े रहते हैं। ले लद्दाख से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी ने करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसका मकसद हाल ही में पीडीपी छोड़कर आए हुए मेंबरान को मुतारिफ कराना था। करगिल पीडीपी के मेंबरान हाजी इनायत अली के क़यादत बीजेपी में शामिल हुए थे। गुलजार हुसैन काचू ने कहा कि उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, जिसमें करगिल की तामीर और तरक्की का सवाल है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने लद्दाख के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मगर अब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। जो पूरा मुफ्ती साहब के दौर से लेकर अभी तक जो चला आया है पीडीपी, उसने लद्दाख के लिए बहुत ही बेहतर काम किया है अगर हम उनको कंपेयर करेंगे पिछली हुकूमतों से। लेकिन मैं आपको इस वक्त वजाहत करना चाहता हूं कि सिचुएशन आप सब जानते हैं कि यूटी डिक्लेयर होने के बाद एक ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ है कि लद्दाख अब जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा, और इसी के साथ ही पीडीपी पार्टी हो या कोई भी रीजनल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में फ्लोरिश कर रहा था, अब उसका भी कोई यहाँ पे जवाजियत नहीं रहता, उसका वो मतलब नहीं रह जाता उन पार्टियों का। तो हमने ये सोचा कि भाई जब कोई रीजनल पार्टी जब उनका कोई यहाँ पे से नहीं रहा है, तो करगिल के अवाम को एक ऐसी पार्टी से, नेशनल पार्टी से हमको उनके साथ मिलना चाहिए ताकि हमें अपना मफाद हासिल कर सकें। 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल लेह में इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया था। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत ने यहां के अवाम की देरीना मांग को पूरा करते हुए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है। गवर्नर ने कहा कि लद्दाख की तहजीब व सकाफत और रिवायतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। गवर्नर ने लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि वो लद्दाख का दौरा करते रहेंगे। इस मौके पर गवर्नर ने सयाहों से इस खूबसूरत मकाम का दौरा करने की अपील की। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल ने भी खिताब किया और लद्दाख को यूटी का दर्जा देने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि लद्दाख के कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर सीईसी LAHDC ने गवर्नर से लेह में मेडिकल कॉलेज के क़याम और नौजवानों को रोजगार की फराहमी की अपील की। इस मौके पर रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। कमिश्नर का ऑफिस दे दो, IG का ऑफिस दे दो, ये तो इनको मिल ही जाना चाहिए, चूंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान किए गए। वो हमने तत्काल दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी दी। इसके अलावा जो यूटी बनने में आपका जो फायदा है वो आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे पता चलेगा। आपके बीच में कोई नहीं, आप सीधे दिल्ली से जुड़े। आपके अफसरों की तनख्वाह, उनके तबादले, उनका काम, सारी चीजें उनका एकदम स्टेटस ऊपर हो जाएगा। और इसके अलावा यूटी में आपका कल्चर, आपका हेरिटेज, आपके रीति रिवाज, कोई भी चीज कोई छुएगा नहीं, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा होगी। जितने भी सारे टूरिस्ट आज यहाँ पे हमारे लद्दाख फेस्टिवल को देखने के लिए आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पे हमारे लद्दाख फेस्टिवल 2019 में स्वागत करना चाहूँगा। और अब हम सभी जानते हैं आज से 4 दिन के लिए है, सितंबर 1 से लेके सितंबर 4 तक हमारा लद्दाख फेस्टिवल होने जा रहा है। ये जो लद्दाख फेस्टिवल है, टूरिस्ट पहले शुरू में 1974 में आना शुरू हुआ था। उस वक्त सिर्फ 535 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। उसके बाद आते आते उसके बाद 2000 गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में आज रौनक देखी गई। लोग भगवान गणेश की मूर्तियां खरीदने में मसरूफ रहे। राजस्थान और मुल्क की दीगर रियासतों से जम्मू आए कारीगर मूर्तियां बनाकर उन्हें बाजारों में सजाए हुए हैं। 10 रोजा गणेश पूजा की शुरुआत के साथ ही लोग गणेश मंदिरों में हाजिरी दे रहे हैं और अपने घरों में गणेश की मूर्तियों की खसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है।
गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों का मानना है कि वो हर साल जम्मू आकर अपनी मूर्तियां बाजारों में फरोख्त करके अच्छी कमाई करते हैं। वाली पूजा कर रही हूँ, ऐसे इतना फास्ट जो है मैं 7-8 साल से रखते आ रही हूँ और इनका आज 2 सितंबर है, इनकी पूजा शुरू हो गई है आज के दिन और 11 दिन पूजा रहती है और 11वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन के टाइम हमें बहुत ही दुख होता है क्योंकि ये 11 दिन हमारे घर में बैठे रहते हैं विसर्जन, हम इनकी पूजा वगैरह करते हैं और याचना करते हैं पूजा और सभी मिलजुल के इसकी पूजा करते हैं इनकी।